किसे डर किसे दोस्ती। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और बात आज उस मसले की जब कुछ जो हम लोग आम तौर पर कहते हैं कि जब दोस्ती होती है तो किसी ना किसी के पेट में दर्द जरूर होता है, और आज वही बात हुई है। इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 70 दशक से भी ज़्यादा पुरानी दुश्मनी को छोड़ते हुए दोस्ती का हाथ मिलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच पुल का काम किया है। माना जा रहा है कि इससे दुनिया में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन दोनों देशों के बीच डील से भारत को काफ़ी फायदा हो सकता है। जानिए क्या है वो डील और कैसे दुनिया के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, इस पे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। President Trump's Middle East plan served as a basis for today's historic peace announcement. Israel and the UAE are two of the most advanced countries in the world. Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. यूएई ने इजराइल के साथ 13 अगस्त को एक ऐतिहासिक समझौता किया। माना जा रहा है कि इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका है। अमेरिका की सपोर्ट पर किए गए इस समझौते का मकसद पश्चिमी एशिया में ईरान की ताकत और उसके प्रभुत्व पर नकेल कसना है और अरब क्षेत्र के दूसरे देशों को बढ़ावा देना है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने इस समझौते के तहत पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने गुरुवार को इस बारे में जब जानकारी दी, ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि बड़ी सफलता, हमारे दो अच्छे देशों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। उन्होंने इजराइल और यूएई और अमेरिका का संयुक्त बयान भी ट्विटर पर शेयर किया। तीनों देशों का कहना है कि इससे पश्चिमी एशिया क्षेत्र में शांति लाने में मदद मिलेगी। Well, thank you very much. This is very important. This is a big event, and I want to just congratulate all of the people standing behind me because they have done an incredible job. This is something that hasn't been done in more than 25 years. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. This is a truly historic moment. Not since the Israel-Jordan peace treaty was signed more than 25 years ago has so much progress been made towards peace in the Middle East. By uniting two of America's closest and most capable partners in the region, something which said could not be done, this deal is a significant step towards building a more peaceful, secure, and prosperous Middle East. Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates lead, and I want to just thank them for being, it's not surprising, knowing Mohammed so well, it's not surprising they are in that lead position, and normalize relations with Israel. We are already discussing this with other nations, very powerful, very good nations, and people that want to see peace in the Middle East. So you will probably see others of these, but this is the first one in more than 25 years. This deal will allow much greater access to Muslims from throughout the world to visit the many historic sites in Israel, which the Muslims want to see very badly and have wanted to see for many, many decades, and to peacefully pray at the Al-Aqsa Mosque, which is a very special place for them. My first trip as president was to Saudi Arabia in May of 2017, in my speech to the assembled leaders of 54 Muslim countries.
Every single one was by their leader, their number one leader. It was an amazing, really an incredible event, very important event. I made clear that the problems of the Middle East can only be solved when people of all faiths come together to fight Islamic extremism and pursue economic opportunity for people of all faiths. And when you look at what's happening, you're seeing a lot of progress is being made that nobody thought could possibly be made. And things are happening that I can't talk about, but they're extremely positive. I want to thank the leaders of Israel and the UAE for their courage and for their leadership to forge this tremendous agreement. It will be known as the Abraham Accord. इस गुरुवार को व्हाइट हाउस ने एक ऐलान किया जिसमें बताया गया कि इजराइल और यूएई में शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नहयान के बीच हुए इस समझौते के तहत इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर से अपनी दावेदारी वापस ले रहा है। दूसरी तरफ यूएई इजराइल से पूर्ण राजनीतिक संबंध शुरू करेगा। ऐसे में ये तीसरा अरब देश होगा जो इजराइल से दोस्ती रखने जा रहा है। बता दें कि अब तक मिस्र और जॉर्डन ने ही इजराइल को मान्यता दी है। मिस्र ने 1989 और जॉर्डन ने 1994 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेंगे, सीधी उड़ानें शुरू होंगी। साथ ही साथ तकनीकी, ऊर्जा, सेहत, पर्यावरण जैसे मामलों पर भी दोनों देश मिलकर काम कर सकेंगे। फिलहाल दोनों देश मिलकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक वैक्सीन बनाने पर भी काम कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में चीन और ईरान की दोस्ती गहराती दिख रही है। दोनों देशों के बीच हुई डील के तहत 25 सालों तक उनके बीच व्यापारिक समझौता रहेगा। इस डील के साथ चीन ईरान को उसके चाबहार रेल प्रोजेक्ट के लिए काफी सस्ती दरों पर कच्चा तेल देगा और ईरान इसके बदले में चीन को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने देगा। फिलिस्तीनी समूहों के इजराइल यूएई के बीच हुए इस समझौते की बड़ी आलोचना की है। फिलिस्तीनी समूहों का कहना है कि इससे फिलिस्तीनियों के उद्देश्य और उसके अधिकारों को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम का एक बयान सामने आया। उसमें कहा गया कि यह समझौता फिलिस्तीनियों की किसी तरह से मदद नहीं करता, बल्कि ये यहूदीवाद की सेवा होगी। ये समझौता इजराइल को फिलिस्तीनियों के अधिकारों के हनन और उनके खिलाफ अपराध को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कि इजराइल के वजूद में आने के बाद भी कई अरब राष्ट्रों ने उसे मान्यता नहीं दी है। यूएई और इजराइल के बीच इन संबंधों के बाद इजराइल और यूएई के बीच रिश्ते सामान्य हो सकेंगे। इस समझौते के बाद यूएई अरब की पहला और अरब क्षेत्र का तीसरा देश होगा जिसे इजराइल संपूर्ण कूटनीतिक रिश्ते होंगे। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन इजराइल के कूटनीतिक रिश्ते स्थापित कर चुके हैं। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि भारत और पाकिस्तान के साथ चीन को इसके क्या फायदे होंगे। लेकिन इस समझौते के बाद कई मुल्कों ने नाराजगी भी जाहिर की है। लेकिन सियासी माहिरों की माने तो पाकिस्तान को काफी नुकसान इसका हो सकता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, एनवी न्यूज़। तो अब किसे डर और किससे दोस्ती, क्योंकि काफी दशकों के बाद दो मुल्कों में दोस्ती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के माहिर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय पाल सिंह बराड़ साहब, एनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा बराड़ साहब, दो मुल्कों में 70 दशकों बाद दोस्ती हुई है। कईयों के पेट में दर्द हो रहा है, कईयों को ये दोस्ती रास नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसे है जी कि ये जो समझौता हुआ है ये करीबन बहुत अहम समझौता है। अगर देखा जाए तो तीनों इस्लामी धर्म जो यहूदी है और इन्होंने बैठ के समझौता किया है, तो हमें सबसे पहले बात तो ये समझ है कि जो अब राजनीति है, कौमांतरी राजनीति है, जिससे ये पहले धर्मों के ऊपर राजनीति करते रहे हैं मुसलमान देश, वो राजनीति का जो इनका क्वार्टर था वो सामने उतर गया है इनका जी। और इन्होंने अपने मुफादों के कारण राजनीति करनी होगी यहाँ पे। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि ईरान ने जब जो खुद को बाहर इस्लामिक
रेवोल्यूशन कहता था कि भी मैं एक्सपोर्ट करूंगा, उसने एक नास्तिक देश के सिद्धांत रखने वाले देश के साथ बहुत बड़ा जब समझौता कर लिया, तो इन लोगों को तो मध्य एशिया में ये बिल्कुल एक उथल पुथल होने का चांस था, जो अब रुक जाएगा और एक शांति, ईरान के अगेंस्ट एक शांति बनी रहेगी। जी। ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो तवाज़ुन बदल रहा था वहां पे, जो ये मुल्क थे, यूएई था चाहे सऊदी अरेबिया था, ये बहुत मसलों में भारत का साथ देते थे कि अपने भी मुफाद थे, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत बड़ी मंडी है और उनका बहुत निवेश यहाँ पे लगता है जी। चाहे, पर फिर भी उसका भारत को एक फायदा ही होगा जी। और इसका जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, उसके डेफिनेटली उसके लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि वो जो है वो सारी तरफ अपनी गेम खेल रहा है, वो किसी की तरफ साइड नहीं लेता, वो सबकी तरफ से फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी, उसको भी एक आस्ते आस्ते समझ आएगा कि उसको साइड एक लेनी पड़ेगी, उसको चीन का भी फायदा ले रहा है, उधर से वो यूएई और सऊदी के साथ भी प्ले करता है, तो वो एक डेफिनेट के लिए एक स्थिति डिफिकल्ट बनती है। जी। तो बराड़ साहब, जिस तरीके से ईरान इसे गलती बता रहा है कि ट्रंप साहब ने जिस तरीके से दो मुल्कों में समझौता करवाया है और फ़िलिस्तीन भी नाराज़ है, तो ये नाराज़गी सही है? ये इसमें आपको लगता है कि ट्रंप साहब ने जो इन मुल्कों को एक किया है, दोस्ती करवाई है, या उसके अकॉर्डिंग राजनीतिक फ़ायदा जो है ट्रंप साहब लेना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? देखो जी, राजनीतिक फायदा तो इजराइल के नेतन्याहू जी को भी है और ट्रंप जी को है, वो तो उसको तो हम नकार नहीं सकते। कोई भी लीडर है या कोई भी नेता है, वो राजनीतिक लाहा तो लेता है या फायदा तो लेता है किसी चीज का। जी। पर हम बुनियादी तौर पे अगर देखें, पहले हम फिलिस्तीन वालों को देखते हैं। जी। आज तक जितने भी समझौते करने की कोशिश की गई थी, उनमें कोशिश ये होती थी कि पहले फिलिस्तीन का मसला सुलझा लिया जाए, फिर अरबों के साथ समझौता हो जाएगा। जी। ये बिल्कुल उससे सी चेंज है, बिल्कुल अलग तरीका अपनाया गया है, जहाँ पे पहले अरब देशों के साथ समझौता हुआ, अभी यूएई के साथ हुआ है। तो लगता है जिस हिसाब से ट्रंप साहब बोल रहे थे और जिस हिसाब से लगता है, तो बाकी अरब देश भी समझौते में आ जाएंगे। जी। जॉर्डन और इजिप्ट ने पहले किया था, पर दोनों बहुत कमजोर मुल्क हैं अरबों के अंदर। जॉर्डन तो बहुत ही कमजोर है, तो उसका समझौता करना ना करना कोई इतना बड़ी बात नहीं थी। पर यूएई का समझौता करना, या कल को ओमान का, या साहब ने बताया कि ओमान के जो प्रिंस थे कबूस, उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। जी। तो इसका मतलब अगर उस तरफ चलेंगे तो फिलिस्तीन का मसला भी उसी रियलिस्टिक लेवल पे हल हो सकता है। जी। जो रिवर्स वाली मेथड था, वो पिछले 70 साल तो काम नहीं किया, लड़ाई ही रही है वहां पे, तो एक नया एंगल से उसको प्रूव करने में कोई गलती नहीं है। तो फिलिस्तीन वालों का तो आस्ते आस्ते हमें समझ आएगा कि हाँ, कुछ ले देके आगे आगे पीछे एडजस्टमेंट होके पता बन जाएगा। जी। मगर ईरान का जो नाराजगी शो करना है, या जो वो उसके अपने मुफाद है, वो उस इलाके में शांति के लिए या उस पीस के लिए नहीं शो कर रहा, उसके अपने ट्रस्ट हर्ट हुए हैं। जी। तो इजराइल और सुन्नी अरब मुल्कों का इकट्ठा होना, सबसे ज्यादा बड़ा खतरा उसमें ईरान को ही होता है, और ईरान ने जो पीछे एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू की हुई थी और जो वो काबू नहीं आ रहा था अमेरिका के, तो उसके लिए ये दबाव बनेगा ईरान के ऊपर। और ईरान ने भी उसका, देखो उसको ताजा होगा जो उसने पहले ही चीन को तकरीबन ऐसी डील दे दी है कि वो सेल आउट ही गया डील एक तरह। जी। जी। लेकिन बराड़ साहब, जिस तरीके से यूए की जो क्राउन प्रिंस हैं, वो पिछले दिनों काफ़ी वक्त हो गया तो पाकिस्तान भी जाके आए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, काफ़ी डील भी हुई, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान का काफ़ी करीबी और काफ़ी सपोर्ट करने वाला मुल्क चीन, इन दोनों को जो है वो किस तरीके से जो है फ़ायदेमंद साबित होगा? ये दोस्ती, जो उनकी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि ईरान और यूएई से अब जो संबंध हैं कुछ खट्टे हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ उनकी दोस्ती हो गई है, तो ऐसे में अब ये चीज़ें जो हैं वो
पाकिस्तान और चीन को क्या अच्छे फायदेमंद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के भारत के साथ जो हैं कभी भी अच्छे संबंध, कोशिशें तो बहुत की गई, वर्तमान में भी की जा रही हैं कि बातचीत के जरिए हर कोई हल शांति का निकाला जाए, लेकिन ये मुल्क हैं कि बाज नहीं आते। ये जो सिचुएशन है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान तकरीबन 2-3 तरफ खेल रहा है। वो उधर से चीन से भी फायदा लेने की कोशिश करता है, तुर्की की तरफ भी जाता है, मगर उनके आर्थिक हालात जो है उनको उसके लिए सऊदी अरेबिया और यूएई पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जी। तो अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में तो पाकिस्तान की जो नीति रही है बहुत डामाडोल की नीति रही है, कभी इधर भाग गया कभी उधर भाग गया, वो उसकी आर्थिकता के से रही है। मगर इस केस में वो ना तो अरबों को छोड़ सकते हैं ना तो चीन को छोड़ सकते हैं, तो वो एक डबल गेम सी और एक तौर पे फटने वाली एक नीति करेंगे। हाँ, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या लोकल उनकी राजनीति है उसके अंदर, क्योंकि पिछले 20-30 सालों से या 40 सालों से पाकिस्तान ने बहुत ही हाई बहुत ही रेडिकल राजनीति की है, तो उनकी पॉपुलेशन का दबाव उनके लीडर्स के ऊपर पड़ेगा, वो हमें सामने देखने को भी मिलेगा। बट पाकिस्तान के पास कुछ लंबी चौड़ी ऑप्शंस नहीं है इस सिचुएशन में, इस संधि का कोई एतराज इफेक्टिवली इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सके। हाँ, एतराज कर सकते हैं या कोई गोल पोस्ट स्टेटमेंट कुछ नहीं कर सकते। जी जी, लेकिन जिस तरीके से भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, और लेकिन जिस तरीके से भारत के साथ चीन और पाकिस्तान ने अपने रिश्ते रखे, और अब वर्तमान में भी जो स्थितियां सीमाओं पर बनी हुई हैं, लेकिन व्यापारिक तौर पर क्या भविष्य में यूएई और इजराइल जो हैं वो आर्थिक तौर पर या व्यापारिक तौर पर भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे? क्या संकेत नजर आते हैं आपको? देखिए जी, पहली बात तो जैसे आपने पाकिस्तान की, पाकिस्तान का तो पीछे काफी इस बात के ऊपर एक्सपोज होता है कि कश्मीर के इश्यूज में तो वो बोलता है, मगर कोई मुस्लिम वर्ल्ड को बोलता है कि बोलने के लिए कहता है, टर्की को बोलता है, मलेशिया को बोलता है, सऊदी अरेबिया पे दबाव डालता है कि कश्मीर के इशू पे बोलो। मगर साथ ही साथ ये मलेशिया और ये पाकिस्तान जब उगर्स का मामला आता है चीन के अंदर, तो वो बिल्कुल बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं उठाते। हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है उगर्स के ऊपर, माइनॉरिटीज पे, यहाँ तक कि भी ऐसी खबरें आती हैं जो हमारे को सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हो सकता है। तो ये तो पाकिस्तान का तो जो पॉलिटिक्स है वो सिद्धांत के ऊपर नहीं है बेस्ड। जो रही बात हमारी जो कि यूएई और अपना जो इजराइल के साथ संबंध है उससे ट्रेड बढ़ेगा। पहले ही भारत के इजराइल के साथ और यूएई के साथ बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर आप जबल अली पोर्ट से जो शिपिंग होती है अगर उसको देखो तो यूएई से बहुत माल इधर को आता है और यहाँ से भी बहुत जाता है, और बहुत लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट है इन देशों में। तो पीछे कुछ महीने पहले एक प्रॉब्लम उठी थी कि भारतीय मजदूरों को नहीं देंगे या दिक्कत आ रही थी या कुछ लोग उठवाए, तो वो तकरीबन मैं कहता हूँ उसमें कुछ एडवांटेजेस होंगी और वो सेटल होने की चांस है, उसमें एडवांटेज मिले जी। लेकिन जिस तरीके से देखिए भारत के एडवांटेज होगा ट्रेड में भी और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जी, लेकिन जिस तरीके से अब वहाँ पर भारत से भी काफ़ी लोग वहाँ पर काम के लिए जाते हैं, काफ़ी वहाँ से पैसा भी कमाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में कोरोना महामारी से तो हर एक मुल्क जो है वो लड़ रहा है, और इस वक्त जो है कुछ मुल्क इसमें फिर भी राजनीतिक फ़ायदा वो देख रहे हैं। अगर किसी के अच्छे संबंध बनते हैं तो क्या वो उन मुल्कों को आना चाहिए कि हम लोग भी दोस्ती की राह पर चलें, भेदभाव या किसी से जो एक मन में मनमुटाव है उसको लेकर छोड़कर अच्छे से संबंध बनाए? देखो जी, ऐसे कि कोरोना को रहते हुए कुछ इम्प्रूवमेंट कम होती है या कुछ बात, तो डेफिनेटली उसका असर तो हर एक पर पड़ेगा जी। पीछे आपने जब देखा होगा जब सीए की प्रोटेस्ट हो रही थी तो एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि भाई ये इस्लामिक देश हैं, ये जो भारतीय लोग वहाँ पे काम करते हैं
को वहां से निकाल रही हैं या कुछ है, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ऐसी डील्स के साथ, चीज के साथ। वो दिक्कतें जो आने के चांस थे जी साफ नजर आ गया कि वो तो सिर्फ एक वैसे ही सोशल मीडिया का या ऐसा ही हल्ला गुल्ला था, उसका हाँ कोविड के होने से कुछ प्रॉब्लम्स तो नेचुरली वो तो भारत में भी आ सकती है। कोई ट्रेड ही कम हो गया तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। जी जी दूसरी बात ये है कि भाई हमारे आस पास के जो पड़ोसी मुल्क है या इवन भारत को भी और ऐसे कि इसमें देखना पड़ेगा कि भाई अगर ये लोगों ने इतनी आगे जाके अपने मसले हल कर लिए हैं, जो 70-80 साल की लड़ाई नहीं थी, हजारों सालों की एक लड़ाई थी और एक कोशिश की गई है कि पीस या शांति लाई जाए, तो हमारे तो यहाँ पे मसले बहुत कम हैं, छोटे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क उनको ले दे के कैसे ना कैसे सॉल्व कर सकते हैं और भारत एक उनके लिए बहुत बड़ी मंडी है जिसको वो एक्सेस कर सकते हैं, और इसी तरह भारत के लिए भी वो बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज उधर खोल सकती हैं। जी तो ये तो उनकी दोस्ती का स्टेप बढ़ाना पड़ेगा उनको जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहे हैं या कोई गलत तरीके की वॉरफेयर भारत में कर रहे हैं, जी उसको उनको रोकना पड़ेगा। जी लेकिन बराड़ साहब, जिस तरीके से ईरान और चीन जो इस तरीके से चाहत एक कहीं ना कहीं रखते हैं कि बड़ी शक्ति बनकर उभरें, जिस तरीके से अमेरिका है, तो क्या उनके ये नापाक मंसूबे जो अपने अंदर रखे बैठे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी? क्योंकि अमेरिका तो शुरू से ही बहुत शक्तिशाली मुल्क रहा है, लेकिन अब ईरान जिस तरीके से कदम उठाता है या चीन जिस तरीके से कदम उठाता है, तो कहीं ना कहीं ये तो इसके पीछे वजह नहीं कि जो ट्रंप ने ये दो मुल्कों के जो समझौता करवाया है तो ईरान या चीन पर नकेल कसना चाहते हैं? डेफिनेटली जी, ये तो बात है कि ईरान जिस तरीके से समझौता करके और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुश कर रहा है और उसको पैसे की संकट आया था, तो वो चीन के थ्रू वो संकट को हल करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना चाहता है। जी तो ये जो समझौता है ये उसके बिल्कुल उसके सामने खड़ा किया है ताकि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो जाए उसको, और उसके जो मंसूबे हैं, ईरान अपना जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जो अपनी आतंकवाद फैला रहा था उस इलाके में, वो उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके का एक कंट्रोल लगाया जा सके, और वो इजराइल और इन समझौतों से उसके ऊपर काफी असर पड़ेगा भी। और जैसे यमन को दे रहा था बीच को कि वो जो रिफाइनरीज पे अटैक किए हैं, तो ये चीजों के ऊपर असर पड़ेगा। और देखो ये तो ताकतों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जो नया संतुलन लाना चाहते हैं या नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। तो आगे तो ये पता लगेगा कि कौन इनमें से ताकतवर है कौन नहीं ताकतवर, तो ये नया बनेगा। बट इस टाइम ये कहा जा सकता है कि हाँ शांति है और इस चीज को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, हिला रहे हैं। हमने चीन का देखा पिछले समय में भी, चीन ने कैसे चलो भारत के साथ तो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, और वो कैसे ना कैसे आता है अपने एटी को आगे खा रहा है। उसको अकेले भारत के साथ ही उसने साउथ चाइना सी में, मलेशिया जिसके साथ उसका प्रॉब्लम थी, कभी इंडोनेशिया जिसके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी उसने दबाने की कोशिश की है। तो ये वो असर्टिव हो रहा है या वो दबंग होने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना एशिया के अंदर अपना गलबा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी शांति और तवाज़ुन को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जी जी, चलिए बराड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन दो मुल्कों की दोस्ती पर किसी को अब डर लगने लगा है और किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतने दशकों बाद दो मुल्कों में संधि हुई है, लेकिन दोस्ती के क्या मायने हैं वो बराड़ साहब ने भी बता दिए, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। Trump's Middle East plan served as a basis for today's historic peace announcement. Israel and the UAE are two of the most advanced countries